Theorem 10.2 of your book. It is there in your syllabus also. The length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. अगर आपके पास ये सर्कल है and one external point, we have taken this point, let it be P. यहाँ से जब आप tangents draw करोगे from a point outside the circle, we can draw two tangents. Two tangents P, T and PQ. Let O be the center of the circle. So here given PT and PQ are two tangents to a circle with the center O, and P is any external point. P is an external point. हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया PT और सॉरी OT एंड OQ को. आपको क्या प्रूफ करना है, PT is equal to PQ. So to prove PT is equal to PQ, ये पॉइंट P है एक्सटर्नल पॉइंट और T is the point of contact of radius and tangent. क्लियर? तो ये जो T से लेके P तक डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट PT. Similarly, PQ is the length of second tangent. You have to prove both the length are equal. So here construction is required. Construction में आपको क्या करना है, join OT, OQ and OP. OT को ज्वाइन कर दीजिए, OQ को और साथ में OP को ज्वाइन कर दिया. In order to prove PT is equal to PQ, हमें क्या प्रूव करना है, both the triangles, triangle POT and triangle POQ, both are congruent. तो उसको प्रूव करने के लिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे. We know that radius and tangent both are perpendicular to the point of contact. ठीक है? So here radius is perpendicular to the tangent to the point of contact. Therefore, अब इसमें टेंजेंट PT एंड रेडियस OT दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे. Therefore, PT is perpendicular to OT and second is PQ, that will be perpendicular to OQ because here PT and PQ are tangent. These are the tangents and OT and OQ are corresponding radii. Clear? जो PT है फर्स्ट टेंजेंट है, रेडियाई कॉरेस्पॉन्डिंग जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ वो कौन सा है, OT है. सिमिलरली फॉर द सेकंड, इट मींस ये एंगल 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे सेकंड एंगल इज 90 डिग्री. लेट इट बी एंगल 1 एंड लेट इट बी एंगल 2. Therefore, angle 1 is equal to 90 degree and same is angle 2. Now we have to take two triangles.
in triangle POT and the second triangle POQ. We know one condition of congruency, RHS. The full form is right. Right means one angle should be 90 degree. Clear? H is not here. If you cannot say it is right hand side. Clear? Right H for hypotenuse. जो ये ट्राइंगल है इसमें हाइपोटेन्यूज 90 की अपोजिट साइड PO वो इक्वल होना चाहिए. S means one of the side. जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसमें साइड कौन सी कंसीडर करते हैं? ये जो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. क्लियर? So we will prove it by RHS. First is angle 1 is equal to angle 2 is equal to 90 degree. Second is H hypotenuse is equal to PO. It is common in both the triangle. And third is PO is equal to QO. What is the reason? Radii of same circle. Radii of same circle. Therefore, triangle POT will be congruent to triangle POQ by RHS. If these two triangles are congruent, then their corresponding parts will be congruent or equal. तो कौन से corresponding parts आपको show करने हैं? PT is equal to PQ. PT is equal to PQ. The reason is CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Therefore, same statement. क्या पूछा था आपसे? Length of tangent drawn from the external point. Length of tangents drawn from external point to a circle are equal. Hence proved. Question number 1. From a point Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeter. तो आपके पास ये सर्कल हो गया. Q पॉइंट हमने बाहर ले लिया. ठीक है. अब from a point Q, length of tangent to a circle is 24. ये फर्स्ट टेंजेंट हो गया, ये सेकंड. तो ये वाली लेंथ आपके पास कितनी हो गई? 24. Let this point be T. So QT, length of tangent is equal to 24 centimeter. And distance of Q from the center is 25. अगर center of circle हम O ले लेते हैं, distance of this point from center 25 centimeter. हमने सेंटर को T के साथ ज्वाइन कर दिया, so OT will be the radius, जिसको आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 ऑप्शंस में से कोई एक आंसर है. तो कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे आप इसको? आपको पता है OQ जो है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे OT रेडियस है और QT जो है वो टेंजेंट है. ठीक है. टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. T is point of contact, which implies OT will be perpendicular to QT, which further implies angle 1 is equal to 90 degree. अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो आपके पास therefore triangle QOT is right triangle.
ठीक है. So using Pythagoras theorem you can write radius OT is equal to, अभी ये क्या हो गया, one of the side is equal to square root of h square minus p square. So it will be OQ square minus QT square. So it will be 25 square minus 24 square whole under root. अब ये MCQ है, जिन बच्चों को ये पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट 25, 24 and 7 they can write direct, क्योंकि इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज, तो यू कैन राइट डायरेक्ट आल्सो. तो इसकी वैल्यू 625 minus 576 under root of that, under root of 49, 7 centimeter. तो आपकी बुक में जो ऑप्शंस गिवन है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. आंसर ए ऑप्शन 7 सेंटीमीटर. जो भी एमसीक्यूज हैं उसमें ये कोई भी सॉल्यूशन आपका चेक नहीं होता, डायरेक्ट आंसर इज चेक्ड. तो अगर आपको डायरेक्ट पता है यू कैन सेव योर टाइम. अगेन क्वेश्चन नंबर 2 इज एमसीक्यू. ठीक है, अब आपको क्या गिवन है, फिगर इज ऑलरेडी गिवन टू यू. 1 point outside the circle, this point is T, point P, and the second point is Q. Then center of the circle is O. This angle is 110. ठीक है, एंगल इज 110. तो हमने कल भी किया था, अगर ये सर्कल का पॉइंट जो है आउटसाइड द सर्कल है कोई पॉइंट और वो टेंजेंट बना रहा है 2, तो उस केस में क्या होता है, ये दो एंगल्स तो आपके पास कितने कितने के हो गए, 90 डिग्री के, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में है. और बीइंग अ क्वाड्रिलेटरल OQTP, सम ऑफ 4 एंगल्स कितना होगा, 360. अब 360 में से आपके पास ये दो एंगल्स निकल चुके जिनका टोटल था 180, तो आपके पास रह गया 180. इसका मतलब एंगल O प्लस एंगल T दोनों का टोटल कितना रहेगा, 180 डिग्री. जो रेडियाई मिलके एंगल बनाते हैं प्लस 2 टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है, बोथ आर सप्लीमेंट्री. तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो. In this question, TP and TQ are 2 tangents to a circle with center O, and you are given angle POQ is 110 degree. Find angle PTQ. तो आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हो एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर, ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. सो 110 डिग्री प्लस PTQ इज इक्वल टू 180. एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री. तो आपके पास ऑप्शन कौन सी हुई इसमें, बी ऑप्शन. बी ऑप्शन इज 70 डिग्री. नाउ सिमिलर इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है PA and PB from a point P, if the tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree. ठीक है, अब नेम चेंज कर दीजिए आप इसमें. सपोज टेंजेंट आउटसाइड ही है. ठीक है, कौन कौन से टेंजेंट्स हैं, PA एंड PB. अब ये जो एंगल है बिटवीन द टेंजेंट्स, वो वाला एंगल आपके पास कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया. एंगल APB इज 80 डिग्री. क्लियर, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल POA. फाइंड एंगल POA. इसका मतलब है अगर आप P को O के साथ ज्वाइन कर देते हो, POA, ये वाला एंगल दिस मच, दैट विल बी एंगल 2. ये आपको फाइंड आउट करना है. क्लियर, तो हमें पता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं.
रीजन बाय RHS। क्लियर? ये वाले दोनों आपस में इक्वल रहेंगे क्योंकि, और ये कॉमन साइड हो गई, ठीक है, H हो गया, और R ये टेंजेंट जो है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ओके, अब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब अब ये दोनों एंगल, एंगल 2 एंड एंगल 3 बोथ विल बी इक्वल। तो हम क्या करेंगे, एंगल AOB प्लस एंगल APB, ये टोटल कितना होता है आपके पास 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल AOB कितना आ गया 180 डिग्री माइनस एंगल APB जिसकी वैल्यू आपको 80 गिवन है, सो इट इज 100 डिग्री। क्लियर? बोथ द ट्रायंगल्स आर congruent, angle 2 is equal to angle 3, so as triangle OAP is congruent to triangle OBP, therefore angle 2 will be equal to angle 3, both will be equal, किसके इक्वल होंगे 100/2 डिग्री। सो एंगल 2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 50 डिग्री हो गई। क्लियर? इसके बहुत सारे मेथड्स हैं करने के, आप यहाँ पे भी एंगल को स्प्लिट कर सकते हो। क्लियर? सपोज आपने ये एंगल नहीं निकालना पहले, आप यहाँ पे निकाल सकते हो, तो ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा हाफ ऑफ 80, दैट इज 40। अगर ये एंगल 40 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल में सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स कितना होता है 90 डिग्री, तो एंगल 2 कितना हो गया 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री। तो आप जिस मर्जी मेथड से इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो आपको यहाँ पे क्या है गिवन ए सर्कल with the center O and AB as diameter। हमें डायमीटर पहले से सपोज करना पड़ेगा। एक सर्कल है, एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आपके पास क्या आ गए, ये पॉइंट A और ये वाला पॉइंट B। और क्या गिवन है कि टू टेंजेंट्स हैं एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर। So this point is A, B. Let first tangent is T1 and second tangent is T2. So a circle with center O and AB as the diameter such that T1 and T2 are tangents कौन से पॉइंट्स A and B रिस्पेक्टिवली। एक टेंजेंट पॉइंट A से पास हो रहा है और दूसरा टेंजेंट जो है वो पॉइंट B से पास हो रहा है, ठीक है, दोनों। और A और B क्या है, दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। जब हम यहाँ पे बेटा टेंजेंट का नेम लिखते हैं ना, वी आर राइटिंग स्मॉल लेटर्स, लाइन को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, पॉइंट जो है उसको कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पे हम अगर T लिखते हैं, सपोज अगर आपने यहाँ पे कैपिटल T लिख दिया तो ये लाइन कौन सी बनी, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे AT1। क्लियर? 2 पॉइंट से भी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको क्या प्रूफ करना है, इसका सेंटर भी मार्क कर लीजिए O। टू प्रूफ both the tangents are parallel, T1 is parallel to T2, or you can write tangents are parallel। Proof। अब AB डायमीटर है, डायमीटर का हाफ OA हमारे पास क्या हो गया रेडियस, OA is radius and T1 is tangent through the point of contact, कौन सा है A।
Therefore, आपके पास T1 is perpendicular to OA. ये वाला perpendicular हो गया. Let it be number 1, which implies angle 1 is equal to 90 degree. Similarly, आपके पास T2 टेंजेंट है और OB आपके पास रेडियस है. OB is radius and T2 is tangent through point B, which implies T2 is perpendicular to OB. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एंगल 2 जो है वो 90 डिग्री हो गया. अब एंगल 2 कौन सा ले सकते हो आप, एंगल 2 ये भी ले सकते हो. ठीक है, एंगल 2 आप ये भी ले सकते हो और इसको प्रोड्यूस करके आप इधर भी ले सकते हो. क्लियर. जब भी हमने पैरेलल लाइंस को प्रूव करना है तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं. या तो हम अल्टरनेट एंगल्स इक्वल शो करते हैं. क्लियर. या हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल शो करते हैं, या फिर जो को इंटीरियर एंगल्स हैं उनका टोटल 180 शो करते हैं. क्लियर. तो इसमें अगर आप ये ऊपर लेते हो एंगल 2 तो एंगल 1 + 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. क्लियर. तो लाइंस विल बी पैरेलल. अगर नीचे लेते हो यहाँ पे तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे. अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, लाइंस विल बी पैरेलल. और कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए आपको इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, दूसरी तरफ लेना पड़ेगा. तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सी है, अल्टरनेट एंगल्स की, जिसमें आपको टोटल भी शो नहीं करना पड़ेगा 180. तो हमने तीनों में से कौन सी ऑप्शन ली, अल्टरनेट एंगल्स. तो एंगल 2 अल्टरनेट बनाना है तो उसको हमने यहां पे नेम दे दिया एंगल 2 90 डिग्री. सो लेट इट बी 1, लेट इट बी 2. फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2, angle 1 is equal to angle 2. Each will be 90 degree. अब ये 1 and 2 कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स. Alternate angles are equal. Therefore, अगर alternate angles equal हैं तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल. T1 is parallel to T2. Therefore, hence proved. आपने क्या प्रूव कर दिया कि डायमीटर के एंड्स पे अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करो तो वो पैरेलल होते हैं. Therefore, tangents drawn at the ends of diameter parallel.